yesterday I taught you about the queue. What is queue? What is the difference between queue and stack? After that I taught you the examples of queue, then applications of queue in real life and computer science, then operations on queue, NQ and DQ, then the different operations are there to perform NQ DQ efficiently. Okay, so these are the examples, operation perform examples. After that I taught you about front and rear. Front is what, rear is what is NQ? Front means your head and rear means your tail. Okay, sorry, front is your head and rear is your tail. So this is the NQ example is there. Then implementation of queue using Python. So these are the examples over there. We have some of the methods are there. Then with examples they have mentioned. After that I taught you the coding example of NQ and DQ with the output. Okay, what is Q exactly? Then introduction of DQ, which is pronounced as disk. So in this we have front also, rear also. For front also we can push and pop, and from rear also we can push and pop. So this is basically an arrangement in which addition and removal of elements can happen from the end, that is from head and or tail. Okay, so next one is application of DQ. So the application of DQ is what? At a train ticket purchasing counter, a normal queue of people is transformed for purchasing a ticket. We have a queue. ओके, एक क्यू है हमारे पास और वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन होंगे वहाँ पे. सो हम वन बाय वन टिकट काउंटर पे जाएंगे, वो टिकट खरीदेंगे. ओके, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि वहाँ से एक का टिकट होने के बाद वो जगह रिमूव हो जाएगी. सो नेक्स्ट विल बी देयर. ओके, नेक्स्ट पर्सन विल बी देयर. सो अगर उसको कोई इश्यू होगा पुराने वाले कस्टमर को, पुराने वाले पर्सन को, तो वो डायरेक्टली जा सकता है काउंटर पे. इंस्टेड ऑफ standing on at a queue, that person can directly go to the counter. Okay, this is one of the application of DQ. So next one is vehicle in the highway. जहाँ पे बहुत सारे vehicles होंगे, हमारे बूथ अलग अलग बूथ्स पे होंगे टोल गेट पे. ओके, पैरेलल बूथ्स होंगे हमारे टोल गेट पे, वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स होंगे. और अगर हमारा क्यू होंगी व्हीकल्स की और नेक्स्ट वाला बूथ अगर एम्प्टी होगा तो वो व्हीकल डायरेक्टली हम वहाँ पे भेज सकते हैं नेक्स्ट बूथ पे. ओके, सो वी कैन से दैट करंट बूथ एंड जॉइन क्यू एट द वैकेंट बूथ. ओके, करंट बूथ पे बहुत सारे व्हीकल्स होंगे तो हम ज्वाइन करेंगे क्यू एट द वैकेंट बूथ. ओके, सो फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स वेयर डेटा स्ट्रक्चर DQ में बी अप्लाइड इन कंप्यूटर साइंस. यहाँ पे हम URLs देखेंगे. डिफरेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री में URLs होते हैं अलग अलग. सो यहाँ पे हम स्टैक कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे एक दिन का हिस्ट्री, एक वीक का हिस्ट्री, देन एक पूरे साल का हिस्ट्री. these are the different options will be there, or we can say that we can press directly Ctrl+Shift+T. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे कि उसमें से कुछ एक डेटा हम लोग डिलीट कर सकते हैं तो पूरा उस दिन का हिस्ट्री चला जाएगा और फिर नेक्स्ट दिन पे नेक्स्ट हिस्ट्री आएगा. तो यहाँ पे हम क्यू यूज़ कर सकते हैं हमारा. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है उन लोगों ने कि as a number of URLs which can be stored in history is fixed. Okay, so when this list of URLs become large, URL from the end of the list gets deleted. ओके, एंड ऑफ द लिस्ट से डिलीट हो जाएगा. मतलब क्यू में क्या होता है, फ्रंट और रियर से डिलीट हो जाता है, लेकिन हेड अगर होगा तो टेल से डिलीट करेंगे. मतलब एट द एंड वी विल डिलीट इट. इट विल वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ DQ ओवर हियर, सो इट विल गेट डिलीटेड फ्रॉम द रियर साइड. Okay, that is from the tail. Okay, so this is the application of at the computer science. Some happens for providing the do and undo option in the text editor. Do and undo option use करेंगे हम text editor में over here. Okay, so to check
whether a given string is palindrome or not। यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है कि हमारा जो स्ट्रिंग दिया हुआ है जैसे 1 2 1 होगा तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से भी वो 1 2 होगा 1 2 1 होगा एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड से भी वो 1 2 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम टेल एंड रेयर यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, नॉर्मल क्यू में जैसे हम URL में यूज़ किए थे वैसे यहाँ पे भी हम रेयर यूज़ करेंगे। That is inserted in the DQ. So we will take out a character from both the ends and match them till there is no character left or only one character left in the DQ. In either case string is palindrome. Okay. So इसमें क्या consider करेंगे हम कि हम both side से match करेंगे कि यहाँ पे कोई भी character DQ में left नहीं होना चाहिए। ओके, रुकना नहीं चाहिए DQ में एक भी कैरेक्टर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। पूरा कैरेक्टर 3 0 1 2 3 का केस होगा तो 1 2 1 पूरा फिलअप होना चाहिए, एक भी हमारा ब्लॉक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इन आइदर केस वो केस क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। मतलब अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा फिर, दैट नंबर विल बी पैलिंड्रोम नंबर। ओके, दैट यू हैव टू कंसिडर। मीन्स DQ, ये देखो ये DQ का एग्जाम्पल है, ये DQ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम 3 ब्लॉक्स कंसिडर करेंगे फ्रॉम फ्रंट एंड रेयर, वी कैन से इट एज 1 2 1। ओके, so from left also it should be 1 2 1 and from right also it should be 1. Don't consider these 3 blocks. ओके, और यहाँ पे अगर 4 ब्लॉक हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, वो कंसिडर पैलिंड्रोम नहीं होगा, अदरवाइज इट शुड बी अ पैलिंड्रोम। ओके, this is the case. Next one is what? अभी next one हम देखेंगे operations on DQ. Insert front, insert rear, deletion front, deletion rear. Okay, so insert front में हम front side से DQ में insert करेंगे, front side से मतलब हमारे head पे। Then insert rear मतलब tail से insert करेंगे। डिलीशन फ्रंट मतलब फ्रंट से डिलीट करेंगे, डिलीशन रेयर मतलब रेयर से डिलीट करेंगे, फ्रॉम टेल इट विल बी डिलीटेड। सो टू परफॉर्म above operations efficiently on DQ, we will need all supporting operations used in normal queue, whereas is empty, pick and size. These are the operations over there. So these are the algorithms we have to check it out. So start traversing string madam from left side a character at a time. Okay, so we are considering over here these are what operations on DQ. We are performing different operations. So start traversing a string madam from the left side a character at a time. Okay, insert the character in DQ as normal queue using insert rear. Okay, so we are inserting from rear side and from front side. Repeat step 1 and step 2 for all characters of string madam. Okay, we are inserting over here. Look at this. This is MADA. Okay, that is front and rear. Now next one, what will happen? Remove one character from the front and one character from the rear end of the queue using deletion front and deletion rear will happen. So we are removing from right side and from left side. So what will be there? We are removing first from front side. So it will be A, D and insert rear. Remove front and insert rear. So it is A. Okay. So next one will be what? Match these two removed character. If they are same, then repeat step 4 and 5 till DQ is empty or left with only one character. So over here we are removing M from both the sides. Okay, so it will be only eventually string is palindrome, else stop as string is not palindrome. This is the palindrome string, and if we are writing over here insert rear, so if over here you have to insert rear. Over here you have to insert M over there. Okay, if you are inserting M over here, what will happen? MADAM, MADAM. So this is a palindrome string. Okay,
तो यहाँ पे क्या लिखा है उन लोगों ने, मैच द स्ट्रिंग रिमूव कैरेक्टर। यहाँ पे एक एक कैरेक्टर अगर हम लोगों ने निकाल भी दिया फिर भी ये पैरेंड्रोम ही होता है, राइट। सो इफ दे आर सेम देन रिपीट स्टेप 4 and 5, दोनों स्टेप रिपीट करना है हमको 2 कैरेक्टर रिमूव करने के बाद। टिल DQ इज एम्प्टी और लेफ्ट विथ ओनली 1 कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर बचेगा। फिर यहाँ से फ्रंट और रेयर से रिमूव करेंगे। सो इवेंचुअली स्ट्रिंग इज पैरेंड्रोम। अगर स्टॉप करना है हमको तो स्ट्रिंग पैरेंड्रोम नहीं होगा, तो हमको तो ऑलरेडी पता है कि ये स्ट्रिंग पैरेंड्रोम ही है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैडम लिखेंगे, ठीक है। फिर इंसर्ट करेंगे हम नॉर्मल यूजिंग इंसर्ट रेयर, रेयर में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, रेयर में नहीं, तो हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, M इंसर्ट करेंगे। स्टेटस ऑफ DQ आफ्टर 4th iteration। Then remove 1 character from the front and 1 character from the rear, rear और front दोनों से डिलीट करेंगे। यहाँ पे M इंसर्ट नहीं किया तो आपको खुद से इंसर्ट करना है M, यहाँ पे M इंसर्ट करना है। तो यहाँ से M और यहाँ से M, मतलब फ्रॉम फ्रंट और रेयर दोनों में से हम लोगों ने क्या किया, M को निकाल दिया। फिर क्या होगा, मैच दिस 2 रिमूव कैरेक्टर्स, मैच करना दोनों कैरेक्टर्स को, सेम दोनों कैरेक्टर है, दे आर सेम। देन रिपीट 4 and 5, 4 and 5 फिर से रिमूव करना, हम लोगों को 4 and 5 रिमूव करना है। तो 4 and 5 में क्या करेंगे, हम एम्प्टी करेंगे दोनों को, मतलब एक ए निकल जाएगा हमारा फिर से। ओके, सो इवेंचुअली स्ट्रिंग इज पैरेंड्रोम। तो बीच में क्या बता है, D बचा है सिर्फ। तो आप खुद ही सोचो, यहाँ पे भी M निकाला, A निकाला, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से भी M और A निकाला, तो बीच में D बचा है। तो दैट फुल स्ट्रिंग इज व्हाट, पैरेंड्रोम। और अदर बीच में कोई कैरेक्टर एम्प्टी बचता है हमारा, तो क्या होगा, और एक कैरेक्टर अगर बचेगा अदर कैरेक्टर, देन इट विल बी नॉट पैलेंड्रोम, कि स्टॉप हो जाएगा और फिर वो पैलेंड्रोम नहीं बचेगा। ये यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एम्प्टी रहना नहीं चाहिए वो, या फिर कोई अदर कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए, देन इट विल बी अ पैलेंड्रोम। नाउ नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DQ यूजिंग पाइथन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, माई DQ लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट एक हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे डेफ इंसर्ट फ्रंट करेंगे, फ्रंट में इंसर्ट करेंगे, माई DQ में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, फिर इंसर्शन 0, एलिमेंट, फिर इंसर्ट रेयर, इज एम्प्टी, डिलीट रेयर, ये सब यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेफ डिलीशन रेयर माई DQ, इफ नॉट इज एम्प्टी रिटर्न माई DQ डॉट पॉप। पॉप मतलब एक, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो हम एक रिमूव करेंगे लिस्ट में से। सो DQ एल्स अदरवाइज किस में जाएगा, वो एम्प्टी हो गया, ऐसे लिस्ट हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कि एम्प्टी है डिलीट करने के बाद। डिलीशन रेयर मतलब राइट हैंड साइड से हम लोग को टेल से रिमूव करना है। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग एक एलिमेंट पॉप करेंगे, और अदरवाइज वो किस में जाएगा, डिलीशन रेयर में पूरा एम्प्टी है ऐसा हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, गेट फ्रंट। अभी गेट फ्रंट मतलब क्या, फ्रंट हैंड साइड में हम लोग को कुछ ऐड करना है माई DQ में। तो अगर वो लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो हम लोग माई DQ के 0th इंडेक्स वाले लेटर को या फिर नंबर को हम लोग प्रिंट करेंगे। एल्स प्रिंट Q एम्प्टी, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, वो Q मेरा एम्प्टी। अभी गेट रेयर क्या करेगा, डायरेक्टली माई Q में हम लोग इज एम्प्टी बोल दिया, अगर वो एम्प्टी होगा तो हम लोग लेंथ में से एक माइनस कर देंगे, मतलब 4 0 1 2 3 4 होगा तो एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा। सो एल्स प्रिंट DQ एम्प्टी, तो एक एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DQ इन पाइथन। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DQ हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, डेफ इंसर्ट फ्रंट माई DQ एलिमेंट, माई DQ डॉट इंसर्ट 0, एलिमेंट, डेफ गेट फ्रंट माई DQ, इफ नॉट इज एम्प्टी माई DQ, रिटर्न माई DQ 0। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DQ हम लोग क्या देखेंगे कि इंसर्ट फ्रंट में इंसर्ट करेंगे हम लोग। सो इंसर्ट 0 में एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हम लोग फ्रंट साइड में, फिर हम फ्रंट वो ले लेंगे, इज एम्प्टी माई DQ, देन रिटर्न माई DQ एट 0th पोजीशन।
देन प्रिंट क्या करेंगे, DQ अंडरफ्लो हो जाएगा वो, क्योंकि इंसर्ट फ्रंट में हम लोग ने एक एलिमेंट 0 पोजीशन में डाल दिया है, फिर उसी फ्रंट को हम लेंगे, अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो 0 पोजीशन का रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अंडरफ्लो हो गया है, वो एक एम्प्टी रहेगा फिर वो। ओके, देन डेफ गेट रियर माई DQ, तो यहाँ पे क्या होगा, गेट रेयर करेंगे हम, इफ नॉट इज एम्प्टी माई DQ, रिटर्न माई DQ लेंथ ऑफ माई DQ -1, एल्स प्रिंट Q अंडरफ्लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि गेट रेयर लेना है हमको, तो इज एम्प्टी माई DQ होगा तो रिटर्न हम करेंगे माई DQ लेंथ ऑफ माई DQ -1, मतलब उसमें से एक माइनस हो जाएगा जो हमारा लेंथ होगा उसमें से, या फिर हम लोग प्रिंट करेंगे Q अंडरफ्लो हो जाएगा Q। देन डेफ इंसर्ट रेयर माई DQ एलिमेंट, माई DQ अपेंड एलिमेंट। सो इसमें क्या होगा, हम लोग इंसर्ट करेंगे रेयर को, सो माई DQ एलिमेंट होगा इसमें, सो माई DQ में अपेंड करेंगे हम एलिमेंट को इंसर्ट रेयर साइड में। ओके, फिर से इज एम्प्टी होगा माई DQ, सो लेंथ अगर 0 होगा तो रिटर्न ट्रू करेंगे, एज इट इज विल गो टू फॉल्स। अगेन डिलीशन रेयर माई DQ, इफ नॉट इज एम्प्टी माई रेयर, इफ नॉट इज एम्प्टी माई DQ, रिटर्न माई DQ डॉट पॉप, एल्स प्रिंट Q अंडरफ्लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिलीशन रेयर करेंगे हम लोग, अगर हमारा रेयर साइड में डिलीशन करना होगा तो हम लोग, अगर इज एम्प्टी नहीं होगा वो, मतलब एम्प्टी नहीं होगा अगर, तो हम लोग एक एलिमेंट उसमें से रिमूव करेंगे, अदरवाइज इट विल गो टू अंडरफ्लो, मतलब एक एम्प्टी रह जाएगा। ओके, बाद में फिर से डिलीशन फ्रंट माई Q, इफ इज एम्प्टी माई DQ, मतलब डिलीशन फ्रंट होगा ना अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीशन फ्रंट में फ्रंट साइड से डिलीट होगा, सो अगर मेरा एम्प्टी होगा माई DQ तो प्रिंट करेंगे हम लोग अंडरफ्लो, अदरवाइज हम लोग माई DQ में पॉप करेंगे एक एलिमेंट। तो फाइनली हम लोग मेन लेंगे, मेन डेफ में एक मेन मेथड लेंगे जिसमें हम DQ लिखेंगे, एक लिस्ट लिखेंगे, एक इनपुट लेंगे हम, that is enter 1 to use as normal Q2 otherwise। तो if choice 1, अभी दो नंबर है मेरे पास, एक 1 है और एक 2 है, तो हम choice 1 लेंगे सबसे पहले, एलिमेंट इनपुट फॉर इंसर्शन एट रेयर। और दूसरा केस क्या है मेरे पास, दूसरा केस है मेरा फ्रंट, एक फ्रंट का केस है और एक रेयर का केस है, एंटर 1 टू यूज एज नॉर्मल Q2 अदरवाइज। ओके, सो यहाँ पे चॉइस 1 लिया हमने सबसे पहले, तो सबसे पहले एलिमेंट को इनपुट लिखेंगे, डेटा फ्रॉम इंसर्शन एट रेयर, इंसर्ट रेयर DQ एलिमेंट, एलिमेंट गेट फ्रंट DQ, फ्रंट में लिया हमने, इंसर्ट किया रेयर में, और फिर मैंने क्या लिया, फ्रंट ले लिया अपने एलिमेंट में। ओके, रेयर में इंसर्ट किया मैंने सबसे पहले, फिर फ्रंट लिया मैंने, फिर डेटा एट अ बिगिनिंग ऑफ Q इज एलिमेंट, डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ Q इज व्हाट, एलिमेंट इनपुट डेटा फॉर इंसर्शन एज एट फ्रंट। सो इसमें क्या होगा, फ्रंट में हम लोग इंसर्ट करेंगे डेटा, फ्रंट में इंसर्ट करेंगे डेटा, तो इंसर्ट रेयर, रेयर में क्या करेंगे हम लोग, फिर से इंसर्ट करेंगे, फिर डेटा रिमूव फ्रॉम फ्रंट Q इज डिलीशन फ्रंट, दोनों फ्रंट के डेटा हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि चॉइस 1 लिया है हमने। ओके, सबसे पहले रेयर में हम लोगों ने इंसर्ट किया, फिर फ्रंट लिया, फ्रंट का इनपुट लिया, फिर इंसर्ट रेयर, रेयर में भी एक इंसर्ट किया फिर से हम लोग ने, फिर दोनों फ्रंट के डिलीट कर दिए। तो आउटपुट देखो कैसे आएगा इसका, एंटर 1 टू यूज एज नॉर्मल Q अदरवाइज 1, डेटा फॉर इंसर्शन एज रेयर 23, डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द Q इज 23, डेटा फॉर इंसर्शन एज रेयर इज 45। ये हम लोग ने इनपुट जो लिया है ना इस हिसाब से आएगा। सो आपको बस इतना याद रखना है कि चॉइस 1 जब हम कंसिडर करेंगे, चॉइस 1 जब हम करेंगे तब हम क्या करेंगे पता है, उसका डेटा इंसर्शन करेंगे रेयर में। ओके, फिर हम गेट फ्रंट करेंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे उसी बिगिनिंग ऑफ Q के एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट हमने रेयर में लिया है। ओके,
जो हमने यहाँ पे इंसर्ट रेयर किया है, फिर यहाँ पे गेट फ्रंट किया है, राइट। फिर प्रिंट करने के बाद हमने किसको लिया है, हमने उसी एलिमेंट को ले लिया है, दोनों एलिमेंट आएगा जो इनपुट हमने ले लिया है। ओके, रेयर में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट रेयर में ले लिया है और वो गेट फ्रंट हो गया। ओके, फ्रंट भी ले लिया हमने उसी में। तो हमको प्रिंट क्या करना है, एलिमेंट प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या होगा हमारा, गेट फ्रंट, रेयर का एलिमेंट फ्रंट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डेटा फॉर इंसर्शन एज फ्रंट। फिर यहाँ पे इंसर्ट रेयर हो गया, एलिमेंट में चला गया। फिर प्रिंट क्या होगा, डिलीशन फ्रंट, डिलीशन फ्रंट, दोनों प्रिंट हो जाएंगे हमारे। जो भी इंसर्ट किया हुआ है दैट विल बी डिलीटेड। रेयर का डेटा फ्रंट में जाएगा, अगेन योर एलिमेंट विल बी इंसर्टेड एट रेयर, मतलब फ्रंट भी हो गया मेरा, रेयर भी हो गया। फिर मुझे डिलीट क्या करना है, फ्रंट करना है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कोड समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ गया। फिर इंसर्शन एट रेयर 23, फिर डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू इज 23, ये भी हो गया। तो डेटा फॉर इंसर्शन एट रेयर 45। सो रिमूव करते वक्त क्या हम रिमूव करेंगे, एक बार फ्रंट मेरा रेयर है तो मैं क्या लिखूंगी, 23 लिखूंगी, और नेक्स्ट टाइम क्या लिखूंगी, 45 लिखूंगी। And then Q underflow. So data removed from front is Q will be none. So next will be what? Enter 1 to use at normal Q 2, otherwise 2. So data for insertion as front is 34. Data at the end of Q is 34. Data for insertion as front is 53. Okay, so यहाँ पे remove क्या करना है मेरे को, from rear Q is 34 and 56. Okay, 34 and 56. So that is Q underflow हो गया। डेटा रिमूव फ्रॉम द रेयर ऑफ Q इज नन, लास्ट में नन हो जाएगा, वो यहाँ पे भी नन हो जाएगा। रिमूव नहीं कर रहे हैं हम फ्रंट और रेयर से, यहाँ पे फ्रंट आएगा, यहाँ पे रेयर आएगा। यहाँ पे फ्रंट लिखा और यहाँ पे रेयर लिखा, दोनों केसेस लिखने हैं हमको, केस 1 एंड केस 2। केस 1 चॉइस 1 इज फॉर व्हाट, फ्रंट, एंड चॉइस 2 इज फॉर रेयर। ओके, चॉइस 2 भी लिखना चाहिए यहाँ पे, सेम वे चॉइस 2 आएगा। यहाँ पे चॉइस 1 आया ना, वैसे ही चॉइस 2 भी आएगा। ओके, तो नाउ वी विल सी द समरी। समरी में आपको क्यू के बारे में जानकारी दे दी है मैंने। क्यू क्या होता है, हमारा फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रिंसिपल। फिर मैंने आपको मैंने फ्रंट और रेयर के बारे में बताया, इसमें फ्रंट और रेयर क्या होता है। फिर इंसर्शन बताया मैंने आपको, डी क्यू क्या होता है, ये ऑपरेशंस बताया मैंने अलग अलग। तो ये सब अनदर ऑप्शंस हो गए हमारे सब। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि डी क्यू सपोर्ट करता है स्टैक को ऑल्सो, और क्यू को, दोनों को सपोर्ट करता है डी क्यू। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स दैट यू कैन सॉल्व बाय रीडिंग योर बुक, देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्यू एंड स्टैक, ये भी बताना आपको। फीफो क्या होता है क्यू में, ये बताना है। फिर राइट अ मेनू ड्रिवन पाइथन प्रोग्राम यूजिंग क्यू टू इम्प्लीमेंट मूवमेंट ऑफ शटलकॉक इन द बॉक्स, इन इट्स बॉक्स में शटलकॉक रहता है ना, उसके बारे में आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसका मूवमेंट क्यू में कैसा होता है। एक जैसे मैंने प्लेट स्टैक में बताया था, वैसे क्यू में क्या होता है पता है, ऐसा बॉक्स कंपोज बॉक्स रहेगा ना, उसमें अलग अलग शटल रहते हैं ना, उसमें क्यू है। क्यू में जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे, एक में पेंसिल इंसर्ट करेंगे, एक में पेन इंसर्ट करेंगे, इसमें चॉक इंसर्ट करेंगे, इसमें कलर चॉक्स इंसर्ट करेंगे, ऐसे आप लोग अलग अलग इंसर्ट कर सकते हो। फिर पॉप करना है आपको, एक एक पुश करना है, रेयर यूज़ करना है, फ्रंट यूज़ करना है, ऐसे आप लोग एक कोड बनाना, ठीक है। फिर हाउ इज़ क्यू डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम डी क्यू डेटा टाइप, क्यू और डी क्यू में क्या फ़र्क है। क्यू में मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल क्यू रहता है, और डी क्यू में मैंने आपको फ्रंट और रेयर दोनों का बता दिया।
फ्रंट में से भी पॉप करना पड़ेगा, रेयर में से भी पॉप करना पड़ेगा और इंसर्ट भी करना पड़ेगा। सो बाद में क्या यूज़ करना है, शो द स्टेटस ऑफ क्यू आफ्टर ईच ऑपरेशन। तो यहाँ पे स्टेटस दिया। पिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पिक मतलब क्या रहता है, पिक मतलब जस्ट रीड करना रहता है। तो यहाँ पे हमको स्टेटस ऑफ क्यू बता दिया है, एन क्यू डी क्यू, एन क्यू पिक, डी क्यू एन क्यू, ये सारे बता दिए थे आपको। तो इसके स्टेटस बताना है कि एन क्यू 34 मतलब क्या, एन क्यू मीन्स वॉट, सिंपली एंटर करना है हमको क्यू में। डी क्यू मतलब, एन क्यू मतलब नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, एन क्यू मतलब हम रेयर में इंसर्ट करते हैं, मतलब हम टेल में इंसर्ट करते हैं, राइट। तो टेल में इंसर्ट करते जाना है, फिर डी क्यू भी करना है, एन क्यू भी करना है, फिर रीड करना है, फिर से डी क्यू करना है, एन क्यू करना है, वैसे आप लोग सॉल्व करना उसको। देन शो द स्टेटस ऑफ डी क्यू आफ्टर ईच ऑपरेशन, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रेयर, डिलीशन फ्रंट, इंसर्ट रेयर, डिलीशन फ्रंट, डिलीशन रेयर। ये भी आपको क्या करना है, स्टेटस बताना है अलग अलग केसेस का। बाद में राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैरेंडम और नॉट यूजिंग डी क्यू, हिंट रेफर द एल्गोरिथम। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलेंड्रोम। और जो पैलेंड्रोम का एग्जांपल मैंने 1 to 1 का बताया ना, उसी का आपको एक एग्जांपल, वो थ्योरी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक थ्योरी बताया था मैंने, ये थ्योरी बता देना आप, और उसका एक कोड बता देना सिंपली पाइथन का, पैलेंड्रोम का। देखो ये कोड, ये नॉर्मल एल्गोरिदम है, इसी एल्गोरिदम से पैलेंड्रोम का पाइथन का कोड बनेगा। ठीक है, ये एल्गोरिदम आप पूरा एक्सप्लेन कर देना। ओके, so this is your chapter Q. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much.